हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सभी क्वांटम नंबर्स कर लिए। मैं आपको एक बार समराइज करता हूँ और आपको वो 3D व्यू जो एटम का हो सकता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग, वो आपके दिमाग में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी मेरे साथ कनेक्ट रहिए और देखिए कि वो एक्चुअली में एटम को अगर हम क्वांटम मैकेनिकल वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंगली सोचें तो एटॉमिक मॉडल कैसा होना चाहिए। लेट्स सी। बेटा देखिए, अभी तक आपने जो क्वांटम नंबर्स पढ़े, समरी ऑफ क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर गिव्स अबाउट मेन एनर्जी लेवल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट 2n स्क्वायर, ऑर्बिट के अंदर सब शेल्स या सब ऑर्बिट और सब लेवल, इट इज गिवन बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर, दीज आर द सब शेल्स गिवन बाय सोमरफेल्ड। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में SPDF टाइप के सब शेल्स हो सकते हैं। दीज आर द स्पेक्ट्रम टर्मिनोलॉजी एज पर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूजन, F फॉर फंडामेंटल, and these are the numeric values assigned for this quantum number. For S, L equal to 0, for P, L equal to 1, for D, L equal to 2, for F, L is equal to 3. Total values of L means subshells in the orbit, B equal to 0 to n minus 1, टोटल n ही रहेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें एक ही सबशेल होगा, दैट इज 1s। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो वहाँ पे 2 सबशेल्स होंगे, 2s एंड 2p। थर्ड ऑर्बिट है तो 3 सबशेल्स होंगे, 3s 3p 3d। फोर्थ ऑर्बिट है तो 4 सबशेल होंगे, मतलब जो ऑर्बिट नंबर है उतने ही सबशेल्स होंगे, बट न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन फ्रॉम 0 to n minus 1, 0 वैल्यू फॉर s, 1 for p, 2 for d, 3 for f, and so on. And maximum number of electrons in S subshell, P, D, F subshell, S में 2, P में 6, D में 10 and F में 14। अगर ये छोटा दिख रहा हो थोड़ा जूम करके देख लेना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिट के अंदर सबशेल्स होंगे, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, दैट इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट गिव द शेप्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल्स एंड ऑर्बिट। Orbitals are what? Maximum electron finding probability, 3D space region around the nucleus. बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ये तो पता लगेगा ही लगेगा कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, और जहाँ मैक्सिमम उसका शेप क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। बट इसके साथ साथ इसका अपोजिट भी तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। अगर हमें मैक्सिमम भी पता लग रहा है तो मिनिमम का भी आइडिया हो जाएगा। That space is called nodes or nodal planes. Total values of orbitals or magnetic quantum number for any subshell can be found out by this formula 2l plus 1, where L is the azimuthal quantum number. That is for S subshell, P subshell, D subshell, F subshell, we can find a total number of orbitals. These numeric value of magnetic quantum number varies from minus L to plus L. For example, suppose for S subshell we know S subshell L equal to 0, so M is equal to 1, that means in S subshell there is one orbital represented by box, and shape of the orbital you know is spherical. For P subshell, that is L is equal to 1, put this L is equal to 1 value in this formula, what you get? You get M equal to 3, that is the 3 orbitals. And you know, already discussed, these 3 orbitals are what? Px, Py, Pz. Write it Px, Py and Pz. Px is minus 1, assigned value of M. Values of M can be written from minus L to plus L for any subshell. So Px is minus 1, Py is plus 1 and Pz is 0. For D subshell, value of L is 2. That is that for D subshell, value of L is 2, put here, that you get the 5 orbitals, that is in D subshell there are 5 orbitals, and P subshells there are 3 orbitals. Okay, and we already studied in an orbital maximum 2 electrons can be filled. In S subshell there is only 1 orbital, so maximum 2 electrons. In P subshell there are 3 orbitals and 1 orbital can have 2, so there is the 6 electrons. D subshell have 5 orbitals named as dxy, dyz, dz square, dxz and dx square y square. These orbitals assigned numerically dxy as minus 2, dyz as minus 1, dz square 0, dxz plus 1, dx square y square plus 2.
Okay, these are numeric values. We can write +2 for this one and -2 for this one, but generally we assigned as. And for F sub shell, value of L is 3. Put here, you get 7 orbitals. The 7 orbitals of F sub shell still cannot be predict exactly what named and orientations of F orbitals are there. Okay, so these are the orbitals. Now listen very carefully and watch very carefully. In the S sub shell, there is one orbital. It means this is the nucleus, and around this, suppose this is the 1s subshell, and this is the electron finding probability region. This is the 1s subshell. You know, it is spherical. In the p subshell, there is a 3 orbital px, py, pz. But S subshell को ध्यान से देखो. This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. That means this spherical shape distributed in all 3 directions. Okay. So there is no angular node here. This is the electron finding probability of 1s. It is the first orbit. If we talk about second orbit, suppose this is the second orbit region, and you studied already in the second orbit there is a 2s. So this is the 2s spherical shape, but there is the gap between 1s and 2s. बीच में कोई तो गैप होगा, कोई तो जगह होगी जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, तो इन दोनों के बीच में मिल जाएंगे नोड्स, एंड दिस इज द 2s ऑर्बिटल इन द सेकंड सबशेल. सेकंड ऑर्बिट के अंदर 2s सबशेल है, उसकी ये 2s ऑर्बिटल है. p सबशेल्स के 3 ऑर्बिटल है. इनके शेप्स पता है ना आपको. वन इज एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, y to z ऐसे पड़े. It is the px. Usually we denoted this one as plus sign, this one is minus sign. This is py. X and z axes are free, and this is pz. These are the Cartesian plane, आप जानते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं सभी. This is pz. ये p सबशेल्स के अंदर के ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप डम्बल शेप है. ठीक है. 2p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, 1p तो होता भी नहीं है, आपको पता है. तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इस तरीका से, अगर ये मैक्सिमम एरिया है तो बाकी ये जो एरिया पड़ा है यहाँ मिनिमम होगी. दैट मीन्स फॉर px वी गेट yz, for py we get xz, and for pz we get xy. These are the angular nodal planes. Angular nodal planes. That means these are those areas where electron finding probability is 0 in the p subshell. This is the electron finding probability distribution maximum. ये जो शेप है डम्बल शेप, इट्स द मैक्सिमम. और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होने के चांसेस नहीं है, अगर px पे हैं तो yz पे नहीं होंगे, अगर py पे है तो xz पे नहीं होंगे, और अगर pz पे हैं तो x और y पे नहीं होंगे. These give you in 3D angular nodal planes. ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर कोई चीज़ मैं कहूँ यहाँ पे है, दिस इज द एक्सिस, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो एक्सिस है ये तो खाली पड़ी ना फिर. और जो 3D में तीसरी एक्सिस है वो भी खाली पड़ी, तो इसके साथ और इसके साथ वाला प्लेन तो वैकेंट है, वहाँ तक कोई इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है नहीं फॉर दिस ऑर्बिटल. उसी को असाइन करने के लिए आपको ये बताया. ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट डी सबशेल और उसके जो 5 ऑर्बिटल हैं, अगर मैं उसको शो करूं तो देखिए जरा. फॉर डी सबशेल
has 5 orbitals, dxy, dyz, dxz, dz square, dx square, 5 square. M की values -2, -1, 0, +1 and +2. It is M usually -2. For this M it is used -1. For this one M is +1. For this one M is +2. And this one we take M as 0. M represents magnetic quantum number. And you know the shape of D subshell? It is a double dumbbell on XY plane. This is x-axis, this is y-axis. So this is the xy plane. This will give you the maximum electron finding probability in the xy plane. It represents the dxy orbital in the D subshell. For dyz, take one as a y-axis, another as z-axis. It's a 3D representation. I just shifted the axis. If we find out double dumbbell on this plane, this is the electron finding probability along yz plane. It will give you dyz orbital. ये जो shapes बना रहे हो, ये shapes क्या हैं? It's a distribution of electron finding probability. dxz, look at x, z, and this is the double dumbbell plane on xz. So the electron finding probability along xz plane. dz square, it has some different shape. This is the z-axis. Take a dumbbell on the z-axis like this, and take another round neck shape on this orbital. बीच में कोई गैप नहीं है, ये मान लीजिए, ठीक है. It gives dz square and dx square y square. It gives double dumbbell on x and y axis. X and y axis. इससे फर्क है, इसमें x और y के बीच में प्लेन थे, ये on the axis है. So these are the 5d orbitals. And shapes of the f orbitals are very complicated, cannot be drawn on the paper. So ये बेटा किसी भी एटम में ऑर्बिट के अंदर, सबशेल्स के अंदर ये ऑर्बिटल्स हो सकते हैं. ये अपने अपने सभी को कंबाइन करके एक नेट मॉडल का बन सकता है, ठीक है. और बीच में अब जैसे डी एक्स वाई, दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी. नाउ व्हाट आर द पोर्शन वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0 फॉर दिस ऑर्बिटल. सो लुक इट, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. टेक जेड एक्सिस लाइक दिस, ये जेड एक्सिस. अब एक्स और जेड, वाई और जेड, ये प्लेन तो खाली पड़े हैं. तो इसके बेटा आपको 2 नोडल प्लेन्स मिलेंगे, एक्स जेड एंड वाई जेड. इसके मिलेंगे आपको एक्स वाई एंड एक्स जेड, क्योंकि वाई और जेड के बीच में तो डंबल आ गया. इसका एक्स एक्सिस फ्री है, तो एक्स के साथ वाई और एक्स के साथ जेड, इसका फ्री होगा. इस केस में आपको मिलेंगे वाई फ्री है ना, तो वाई के साथ एक्स और वाई के साथ जेड, ये इसके नोडल प्लेन से मिल जाएंगे. इसका कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये दूसरा राउंड नेक है. ये ऐसे है कुछ, ये 1 ऑर्बिटल है और फिर बीच में भी एक रिंग सी है, डिस्क बीच में भी लगी हुई है, ठीक है. रिमेंबर, नो एंगुलर नोड्स. This is the only d orbital which have no angular nodes. And for this one, this orbital is x square minus y square. So you know x square minus y square. Nodes का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 को. If we talk about nodes or nodal planes, here should be psi is equal to 0 or psi square should be 0. This is the necessary condition for nodes and nodal planes. तो इसके बेटा 2 प्लेन्स मिलेंगे. इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है. मतलब यहाँ पे 2 एंगुलर नोड्स होंगे और ये मैक्स जो शेप्स बने हैं, इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी रीजन. और जो इसके साथ में ये लिखे हुए, दीज आर द नोडल प्लेन्स. नोडल प्लेन्स, ये इसके नोडल प्लेन्स.
ये जो नोडल प्लेन का कॉन्सेप्ट है बेटा, ओनली फॉर कॉम्पिटिशंस, अदरवाइज सब्जेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन इतना करने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट राइट द डेफिनेशंस ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स. ओके. अब जैसे कि आपने पढ़ा कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 4 क्वांटम नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है. स्पिन क्वांटम नंबर. f ऑर्बिटल्स के शेप मिलते नहीं हैं. स्पिन क्वांटम नंबर just tell about the spinning of electrons is clockwise or anti-clockwise. It is for clockwise and it is for anti-clockwise. Okay. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पर हम इन्हें समझा सकते हैं. ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करता है. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट by the formula n of n plus 2, where n is the number of unpaired electrons. Unpaired electrons और paired electrons देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए. And also gives angular spin magnetic moment. Angular इसकी यूनिट होती है बोगर मैग्नेटम. Angular spin magnetic momentum, and it gives s plus 1 h over 2 pi, where we take value of s plus r. स्पिन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ स्पिनिंग मोशन को भी शो करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ओवरऑल समरी ऑफ द क्वांटम नंबर्स. नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट द क्वांटम नंबर्स? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हाउ कैन यू सॉल्व? व्हाट क्वांटम नंबर इज पॉसिबल और नॉट? For this, we have to first study about the rules of the writing electronic configuration. How can we write electronic configuration, and then distribution of electron, and then calculation of quantum numbers. But whenever you have to find number of nodes, number of angular nodes always equal to L in any subshell. किसी भी सबशेल में एंगुलर नोड्स उसके एजिमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होंगे. नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स ये होंगे n माइनस n माइनस 1. n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर. रेडियल और एंगुलर नोड्स ये जैसे जैसे सबशेल्स वेरी करते जाएंगे तो बीच में जो गैप्स आते हैं उन्हें बोलते हैं. ये एंगुलर नोड्स थे क्योंकि हमने एंगल के हिसाब से वेरी करा. यहाँ पे सबशेल मैक्सिमम डेंसिटी होगी ऑर्बिटल की. एंगल वेरी करा तो यहाँ नोड्स मिल गया, एंगल वेरी करा तो यहाँ नोड्स मिल गया. दीज आर द एंगुलर नोड्स. ये हमेशा L के बराबर होंगे. जैसे D सबशेल में 2 एंगुलर नोड्स होंगे, P सबशेल में 1 एंगुलर नोड होगा. ऐसे सबशेल में एक भी एंगुलर नोड नहीं होगा क्योंकि तो स्फेरिकल है. D सबशेल में भी dz² एक ऐसा है जिसमें कोई एंगुलर नोड नहीं होता. नोड का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो या मिनिमम. ओके. सो जस्ट वॉच these summary of quantum numbers, and then first we have to study about the electronic configuration, and then we can find out how can we find out the set of quantum number values. So first of all watch this, and if you have any problem or doubts then please ask me or call me or phone me. Okay, thank you, thanks a lot.